Welcome back, students. Today we are going to teach unit number first of class 12th. Today's topic, that is intramural and extramural activities, about the meaning, objectives and their significance. Yesterday we are discuss about the various methods of fixtures of a tournament, like consolation tournament, like a knockout tournament, like a league tournament. So after that we are on the next point, that is type of activities, name intramural and extramural. About the meaning of intramural activities, about the word intramural. We start from the term intramural, which is chiefly North American, derived from Latin word intramural, meaning within walls, and was used to describe sports matter and content that took place among terms from within the walls of an institution or area in the year of 1840s. About the detail of detail meaning of intramural activities, about the word, this is a Latin word intra and muralis. Intra means within and muralis means walls. Hence, intramural, within the walls of an institution, means activities that performed in a particular wall of an institution, of an school. So in these type of activities, no one from outside is participating in this type of competitions. The students from same institution is participated mainly in these type of activities, in these types of games. So these are called intramural activities. In simple word, we can say these competitions are the competitions which are conducted within the players of same institution. As I said, in these type of competitions, students from a same institution is allowed to participate in this competition. No student of other school can participate in these activities. Intramural competitions is one of the best means to motivate all the students of an institution for taking part in games. These activities are the most pleasurable as well as enjoyable. So mainly इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ क्या है? इंट्रा का मीनिंग है विदिन और म्यूरलिस का मीन्स है वॉल. वो एक्टिविटीज़ जो विद इन द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, जो एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल या एक कॉलेज के अंदर हों, जिसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकें जो उस स्कूल से हैं. नो वन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, नो वन फ्रॉम अदर कॉलेज is allowed to participate in this type of activities. So this activity is called intramural. So keep in your mind intra and mural. Next, move on to the objectives of intramural. These are the objectives of intramural activities: to provide recreation, to develop the feeling of cooperation, to provide opportunity to every student to take part in games and sports, to find out the talented sports persons, to develop the feeling of sportsmanship, to develop leadership qualities in students, to provide the opportunity to develop personality.
to provide opportunity to learn games and skills. So these are the objectives of intramural activities. 8 objectives are given. So one by one we are going to discuss, elaborate these points. First, that is to provide recreation. Providing recreation to the student is the main objective of intramural. Students participate in intramural activities as per their interest. Hence, they get a lot of joy, fun, and pleasure of participating in such type of intramural activities. So, to provide recreation in these type of games, mainly इनमें क्या होगा, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो गेम आप करना चाहते हो, एज पर योर इंटरेस्ट, आप उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हो जिसमें आप चाहते हो, और जो गेम आपको पसंद होगी उसमें आपका जॉय, फन और आपका प्लेजर उसके साथ जुड़ा होगा. सो इस तरह की जो गेम्स हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि वो अपनी चॉइस के हिसाब से जो अपनी एक्टिविटी या कोई गेम वो चूज़ कर सकते हैं. टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन. सेकंड पॉइंट, कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स and game to achieve the top position. We cannot think about winning a team in game without cooperation. Intramural activities help in developing the feeling of cooperation among students. So second point, that is to develop the feeling of cooperation. These activities help to make a coordination among the students. सो ये गेम्स क्या करेंगी मेनली, अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो, अगर आप एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हो अपनी गेम का, तो आपकी टीम में आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी जो अचीवमेंट कर सकोगे, टॉप पोजीशन ले सकोगे. कोई भी जो टीम है वो विदाउट कोऑपरेशन के नहीं जीत सकती. तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपस में एक ऑपरेशन बनाती हैं, क्योंकि आपस में स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, आपस में उनका मिलवर्तन ज़्यादा होगा, आपस में वो उनकी दोस्ती होगी, तो कोऑपरेशन आपस में ज़्यादा मिलेगा तो अच्छा वो आगे परफॉर्म कर सकेंगे. सो ये एक्टिविटीज़ काफ़ी हेल्प करती हैं टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेम इंस्टीट्यूशन. Third, that is to provide opportunity to every student to take part in the games. The major objective of the intramural activities is to encourage every student to take part in the sports and games. All students can take part in games and sports. Students are free to participate in the game of their choice. Intramural activities provide enough opportunity to all the students to take part in the games. So third point, that is to provide opportunity to every student. ये गेम जो है मेनली हर एक बच्चे को इनकरेज करती हैं कि वो पार्टिसिपेशन कर सके, वो अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी गेम जो वो करना चाहता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चूज़ करें. तो ये एक बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी देती है कि ताकि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकें, उनका उनकी फिज़िकल में जो है वो आगे परफॉर्म कर सके, बेटर अपना दे सकें. तो मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ टू फाइंड आउट द टैलेंटेड स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स. Intramural also help in finding talented sports students. All countries of the world want to win medals at international level such as Olympic and World Cup. German adopted the technique of catch them young. So ये एक्टिविटीज़ हैं जो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ हैं, ये छुपा हुआ टैलेंट, स्टूडेंट्स के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालने के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है.
मेनली जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि उनके इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक गेम्स में, वर्ल्ड कप में, एशियन गेम्स में अच्छे मेडल्स आएँ, ऐसे उनके पास प्लेयर्स हों जो उनकी कंट्री को मेडल दे सकें। तो जो ये टेक्निक है कि शुरुआत से बच्चे को गेम में लगाना, ये टेक्निक जो है ये जर्मन कंट्री के द्वारा अडॉप्टेड की गई टेक्निक है, जिसे कहा जाता है कैच देम यंग। उन्होंने शुरुआत पे स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज़ उनको दी ताकि वो उनका जो छिपा हुआ टैलेंट है वो आगे आ सके और उसको वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स दिला सकें। To develop the feeling of sportsmanship. Sportsmanship is the spirit of being humble in victory and gracious in defeat. Intramural competition develop the feeling of such qualities among the students. तो ये स्पोर्ट्समैनशिप, इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़, ये कंपटीशंस जो इंट्राम्यूरल कंपटीशंस हैं, ये स्पोर्ट्समैनशिप अमंग द स्टूडेंट्स, उनके अंदर ये फीलिंग, एक स्पोर्ट्स का स्पिरिट बनाने में हेल्प करता है। टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट्स, इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग leadership qualities among the students. Although all the students do not become the leaders, yet intramural activities help in developing the leadership qualities in them. तो ये इंट्राम्यूरल जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक लीडरशिप की क्वालिटी को भी जो है वो आगे लाती हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो अपनी टीम का कैप्टन बनते हैं। वो कैप्टन बनने के बाद वो अपनी टीम को जो है वो चलाते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं, तो एक एज अ लीडर वो सामने आते हैं। तो ये इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ जो हैं उनके अंदर लीडरशिप को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनैलिटी, the objective of these activities is to provide the opportunity to develop the personality of students. ये गेम्स जो हैं वो बच्चे को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल्स में जो डरते हैं, वो पार्टिसिपेशन नहीं करते बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, तो वो उनका फ़िज़िक कमज़ोर होने की वजह से या वो फिज़िकली इतने फिट ना होने के कारण वो पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो इसमें क्या है, इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। अपनी मान लीजिए आप फिज़िकली ज़्यादा फिट नहीं हो तो आप उस हिसाब से अपनी एक्टिविटी को चूज़ करें और उसमें आप आगे जा सकते हो। तो ये जो है एक अच्छी अपनी पर्सनैलिटी को आगे आप बना सकते हो इसकी ज़रिए। To provide opportunity to learn games and skills, intramural activities provide opportunity to learn the number of games, their skills, rules, techniques. To regular program of physical education provide these things, yet these activities provide additional opportunity to become more efficient in some games. To provide opportunity to learn games and skills, इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ में क्या है कि बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो इन इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ में आती हैं, तो बच्चे अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। वो नए रूल्स, वो टेक्निक्स, वो गेम्स की स्किल्स अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं नई से नई गेम। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलती है ताकि वो अपने अंदर नई स्किल्स पैदा कर सकें। गेम्स फॉर इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़, these games, the games for intramural activities should be selected very carefully. These activities should be capable of achieving the goals of education. Selection should be made out of the following categories. जो इसमें आगे अदर कैटेगरीज आती हैं इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ में, इनको डिवाइड किया गया है
मेजर गेम्स में, माइनर गेम्स में, रिदमिक, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ में। मेजर गेम्स में कौन सी गेम्स आएंगी? जैसे एथलेटिक, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, स्विमिंग, wrestling, etc. So these are the major games. About minor games, sack race, three-legged race, potato race, kho-kho, etc. About rhythmic, folk dance, group dance, solo dance, lyceum, dumbbells, etc. Creative activities, drawing, painting, making models, etc. Combative activities, judo, karate, boxing, etc. सो ये जो अलग अलग टाइप्स की जो गेम्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जो फिज़िकली फ़िट हैं, जो ज़्यादा भाग दौड़ कर सकते हैं, वो मेजर गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो कम कर सकते हैं वो माइनर गेम्स में करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डांस वगैरह, ग्रुप डांस में, सोलो डांस में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो रिदमिक में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो फिज़िकली ज़्यादा शारीरिक क्षमता नहीं होती, वो ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसा वो अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़, क्या सिग्निफिकेंस हैं इसके? दीज एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी टू कूल डाउन द फाइटिंग इंस्टिक्ट ऑफ चिल्ड्रन। These activities refresh the children and make them agile. Intramural are essential for physical and mental, emotional and social development. These activities lay stress on moral ethical values. These activities provide maximum recreation to the students. These activities are necessary for the development of health of children. To provide the opportunity to maximum students to participate in these games, activities help in developing leadership qualities, help enhance the talent of sports. As we are discuss later, these are the significance of intramural activities are given below. Next, move on to the next activity, that is extramural activity. The word extramural is derived from the Latin word extra and muralis. Extra means outside and muralis means walls. Extramural activities are those activities which are performed outside the walls of an institution. In extramural activities, the student of other school also participate in the sports related activities. These are also called inter-school competitions. So extramural, extra means out of your wall, outside the wall. सो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें अपने स्कूल के बाहर, अपने इंस्टीट्यूशन के बाहर से भी बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसे कहा जाता है एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स दोज who participate in extramural activities become technically and tactically efficient in respective sports. तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़, ये स्टूडेंट्स को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। वो अपनी गेम्स को, अच्छी टेक्निक्स को सीखते हैं, वो आगे परफॉर्म करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं और बच्चों के साथ कंपटीशन होने के साथ। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फ्रेटर्निटी, another important objective of extramural activities is to develop sportsmanship and fraternity in students. Students tend to develop the trait of sportsmanship and fraternity. ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये स्पोर्ट्समैनशिप स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करती हैं। क्यों? ताकि वो कॉम्पिटिशन्स और स्कूलों के साथ होने के कारण और बच्चों के साथ compete करने के कारण वो अपना लेवल जान लेता है, वो आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाना सीख जाता है, वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप उसके अंदर पैदा हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन होने के कारण वो गेम में जीतना भी सीखता है और हारना भी सीखता है। टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स is another vital objective of extramural. The school which do not participate in extramural activities also get motivated to broaden the base of sports.
इसके ज़रिए जो है स्पोर्ट्स का, खेलों का बेस, एक अच्छा बेस बनाया जा सकता है, उसको और ज़्यादा ब्रॉड किया जा सकता है। कुछ ऐसे स्कूल्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो भी मोटिवेटेड होते हैं इसके ज़रिए। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स, extramural activities provide the knowledge of new rules, regulation, advanced techniques and tactics of sports. एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ में क्या होगा कि आपको गेम्स में जो नए रूल्स वगैरह या रेगुलेशंस चेंजेस कुछ किए गए हैं उनका आपको पता चलेगा, आप उसको सीख सकते हो, नई टेक्निक्स को। अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़, extramural activities provide opportunity to schools to show their sports capability. एक्स्ट्राम्यूरल जो एक्टिविटीज़ हैं इनके ज़रिए स्कूल जो है वो अपने बच्चों की क्षमता को शो कर सकता है कि उसके बच्चे गेम्स में कितना कैपेबल हैं, कहाँ तक वो जा सकते हैं, क्या परफॉर्म कर सकते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ आर एसेंशियल फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर मोर इफेक्टिव। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़, इसके ज़रिए फ़िज़िकल के साथ रिलेटेड प्रोग्राम्स को बनाना और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना ज़्यादा आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ एनहेंस द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स। बच्चों को नई से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि ताकि वो गेम में पार्टिसिपेट कर सकें। दीज एक्टिविटीज़ आर एसेंशियल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ स्पोर्ट्स। नई टेक्निक्स बच्चे सीखते हैं इसके ज़रिए। थ्रू एक्स्ट्राम्युलर एक्टिविटीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कैन बी एनहेंस्ड। तो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में स्पोर्ट्स का लेवल को हाई करने के लिए, अपने स्पोर्ट्समैनशिप स्टूडेंट्स के अंदर भरने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उनकी कैपेसिटी को चेक करने के लिए एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ हमारे लिए ज़रूरी हैं ताकि हमारे बच्चे एक अच्छे प्लेयर बन सकें, ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे कंट्री का नाम आगे रोशन कर सकें। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़, ये आर आई थिंक वेरी एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स of a school or an institution. So these are very helpful activities for making good players.